Hello students. So today we are going to start a new chapter of class 12th non-profit organization. Clear? So basically what is non-profit organization? As you know, you already know what is organization. Clear है? आपको organization क्या होता है पहले से पता है कि organization where a group of people are collected together and for the some specific purpose, work for the some specific purpose. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहां पे कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन जो है एक साथ काम करते हैं स्पेसिफिक पर्पज के लिए, फॉर द प्रॉफिट मेकिंग, फॉर द नॉन प्रॉफिट मेकिंग. सो अमंग दीज ऑर्गेनाइजेशंस देयर आर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट वर्क फॉर द प्रॉफिट मोटिव. फर्स्ट organization work for the profit motive and the other organization who work for the non-profit motive. Okay, non-profit motive. Basically प्रॉफिट मोटिव के लिए ये कि जैसे कि अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, कोई कंपनी खोल रहे हैं, कोई पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है, ठीक है. बट सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच वर्क ऑन द नॉन प्रॉफिट मोटिव्स, जैसे कि अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी हो गई, कंपनीज है, पार्टनरशिप फॉर ओके पार्टनरशिप फर्म्स एंड सोल प्रोप्राइटर्स, फिर गवर्नमेंट PSUs. All these are work for the profit motive. Clear? But some of the organizations like your institute, ICAI or ICSI or cost management, चलो ठीक है, ICMI और some charitable trust, some NGOs, okay, and government schools. तो all these organizations are work for the non-profit motive. क्लियर है? इनका जो मोटिव होता है वो केवल सोसाइटी को सर्व करने का होता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने का नहीं. तो बेसिकली along with this profit motive company we also learn these non-profit organizations. ठीक है, हम इस नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है. तो बेसिकली यही होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की, ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन प्रॉफिट बेसिस पर काम करते हैं, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं. क्लियर? नाउ देखते हैं कि इसमें होता क्या है, अकाउंट्स कैसे इसमें मेंटेन किया जाता है. नाउ सी, types of account maintain in NPO. NPO में कितने अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं? तो फर्स्ट अकाउंट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. The first account we maintain is receipt and payment account. Clear है? Here we record all the receipt and all the payment. आई बात समझ में? ठीक है, पहला जो अकाउंट मेंटेन होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मेंटेन होगा. इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट and all capital receipt. आई बात समझ में?
जितने भी रेवेन्यू रिसिप्ट होंगे, जितने भी कैपिटल रिसिप्ट होंगे, इन शॉर्ट जितने भी टाइप, जिस भी टाइप का रिसिप्ट हुआ, अगर कोई भी रिसिप्ट है वो हम लोग इस रिसिप्ट कॉलम में नोट करेंगे, आइदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। नाउ पेमेंट में जस्ट लाइक दिस, वी रिकॉर्ड ऑल द रेवेन्यू पेमेंट, all the revenue payment, and we record all capital payment. Okay, now total of all receipt minus total of all payment, and we will get to balance CD, oh sorry, by balance CD, and this is my what? Profit. This is my what? Profit. It means receipt minus payment. ठीक है, all receipt, total receipt minus total payment, we will get by balance CD. ठीक है, and this is my profit. Okay, now let's see the second type of account. The second type of account is income and expense account. Income and expense account, and here we write record expense and here income, and the third account we maintain is balance sheet. Liability, asset. Okay, balance sheet as you already know, but these two terms is new for you. Receipt and payment हो गया. In the receipt we record all the revenue and payment receipt, and in the payment we record all the revenue and capital payment. Now what about the income and expense account? Okay, income and expense account. Let's see, first of all, this is, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये जस्ट लाइक ए कैश बुक होता है, कैश बुक. ठीक है, इसको कैश बुक नहीं बोलते, लेकिन ये कैश बुक के जैसा ही रिकॉर्ड होता है. जैसे अगर आप लोगों ने क्लास 11th में कैश बुक बनाया था, जिसमें आपने सारे जो कैश के ट्रांजेक्शन्स होते थे आप रिकॉर्ड करते थे, कितना रिसिप्ट हुआ, कितना पेमेंट हुआ, वो सारे आप रिकॉर्ड करते थे. तो जस्ट लाइक द कैश बुक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी मेंटेन किया जाता है. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंस अकाउंट? इट इज जस्ट लाइक, we write it just like cash book, and it is just like profit and loss balance. ठीक है, जो आप पीएल अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, वो भी इसी के जैसा है. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप क्या रिकॉर्ड करते थे? जितने भी एक्सपेंस होते थे, जितने भी आपको इनकम हो गया, आपने वहां रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया. ठीक है, तो ये भी इसी तरीके से बनता है, बस नाम चेंज है, नेम चेंज हो गया है, बाकी के सारे फंक्शंस क्या है, सेम है. अब क्या होगा कि जो भी रिवेन्यू नेचर के रिसिप्ट होंगे और जो भी रिवेन्यू नेचर का पेमेंट होगा, ओके, ऑल द रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू पेमेंट will be record in the income and expense account. ठीक है, all revenue and revenue receipt and revenue payment, all the transactions of revenue nature will record in the income and expense account, and all capital receipt and all capital payment. ठीक है, all the capital receipt and capital payment will record in the balance sheet. ओके, अगर कोई भी कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल पेमेंट का है नेचर है, कैपिटल नेचर का कोई भी ट्रांजेक्शन है, वो आप बैलेंस शीट पे नोट करोगे. कहां कहां नोट करते हैं अभी देखा जाएगा. नाउ सी, ऑल द रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, ऑल द रिवेन्यू रिसिप्ट विल बी रिकॉर्ड इन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट. ऑल revenue receipt
देखिए अगर आपको कुछ रिवेन्यू रिसिप्ट हो रहा है तो आप रिसिप्ट हो रहा है, रिसीव हो रहा है, अगर आपको कुछ भी कैश रिसीव हो रहा हो या कमीशन रिसीव हो रहा हो या आपने स्क्रैप सेल किया है वो रिसीव हो रहा हो पैसा, तो आपका क्या इंक्रीज हुआ, आपका इनकम बढ़ा ना। तो हम इस सारे रिवेन्यू रिसिप्ट को हम लोग रिवेन्यू इनकम साइड में इनकम एंड एक्सपेंस के रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है। वहीं पे अगर हम कुछ पेमेंट करते हैं, ऑल रिवेन्यू पेमेंट विल बी रिकॉर्ड इन द एक्सपेंस साइड। ऑल रिवेन्यू पेमेंट, जो भी रिवेन्यू पेमेंट हम लोग करेंगे वो हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बात समझ में आ गई। नाउ टोटल ऑफ रिवेन्यू, सपोज कि टोटल ऑफ ऑल द रिवेन्यू रिसिप्ट इज मोर देन द टोटल पेमेंट। ठीक है, हम पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। अगर रिसिप्ट हमारा ज्यादा है, ठीक है, अगर हमारा रिसिप्ट ज्यादा है, रिवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है सॉरी, एज कंपेयर टू द रिवेन्यू पेमेंट, तो वी विल राइट सरप्लस हियर। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो क्या लिखते थे, यहां पे प्रॉफिट लिखते थे ना, है प्रॉफिट लिखते थे। लेकिन ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो कहेंगे कि भाई हम तो प्रॉफिट लेंगे नहीं, तो प्रॉफिट नहीं लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे सरप्लस। एक ही बात है, बस नाम चेंज हो गया। तो यहां जो भी होगा वो हम लोग सरप्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो हम लोग यहाँ प्रॉफिट लिखा करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, वो अब प्रॉफिट ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, सरप्लस लिखेंगे फॉर द एनपीओ। ठीक है, तो अगर रिवेन्यू रिसिप्ट रिवेन्यू पेमेंट से ज्यादा है तो सरप्लस मिलेगा और वो हम लोग यहां पे रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में। नाउ ऑल द कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि अब जो भी कैपिटल रिसिप्ट होगा, कैपिटल रिसिप्ट मतलब कि अगर कोई आपको बैंक लोन है, ठीक है, अगर आपने कोई बैंक लोन लिया, अगर आपने कोई बैंक लोन लिया है, जैसे एनपीओ है उसने बैंक लोन लिया है, तो बैंक लोन लेगा तो क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। कैपिटल पैसा क्या हो रहा है, मनी रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है, और उसका जो पीरियड है वो लंबे समय तक के लिए 5 ईयर्स का है, 10 ईयर का बैंक लोन है, ठीक है, 7 या 8 ईयर का बैंक लोन है, तो वो लॉन्ग टर्म्स के लिए बैंक लोन होते हैं। ठीक है, तो वो सारे इधर चले आएंगे, ऑल कैपिटल रिसिप्ट लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो तो आपके ऊपर क्या है, ये एक लाइबिलिटी है। ठीक है, अगर आपको किसी ने पैसा दिया किसी पर्पस के लिए, अभी आगे क्वेश्चन आएगा, अगर आपको किसी ने कोई पैसा दिया और खास पर्पस के लिए दिया तो डेट विल बी योर लाइबिलिटी एंड दस यू रिकॉर्ड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नाउ ऑल कैपिटल पेमेंट, अब कैपिटल पेमेंट कब आप करोगे, आप कैपिटल पेमेंट कब करोगे, पेमेंट कब करोगे, छोड़ो कैपिटल की बात, पेमेंट कब करोगे, जब आप कुछ परचेज करते हो। और कैपिटल कैपिटल पर पेमेंट कब करोगे, जब आप कुछ चीज परचेज करोगे, जैसे सपोज कि आपने कोई मशीनरी परचेज की। अब एक बात बताइए कि कैपिटल नेचर आप जानते हो पहले से ही रिवेन्यू नेचर क्या होता है, पढ़े हो, जानते हो आप। अब बताओ रिवेन्यू नेचर वो होता है कि जिसका एडवांटेज हम केवल 1 ईयर तक ही ले सकते हैं, क्योंकि हमको लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें हम सारे जितने भी 1 ईयर तक का जो एक्सपेंस या इनकम होता है, जिसका बेनिफिट या जिसका मतलब जिसकी बेनिफिट हम केवल 1 ईयर तक ही ले सकते हैं, वो सब कुछ हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, वो रिवेन्यू नेचर का होता है और प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। एंड वी विल रिकॉर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट। कैपिटल नेचर क्या होता है, कैपिटल की जिसका हम जो एडवांटेज है, जिसकी जो एडवांटेज है वो हम लंबे समय तक ले सकते हैं। मशीनरी है, उसकी एडवांटेज हम लोग लंबे समय तक ले सकते हैं। कोई लैंड या बिल्डिंग खरीद लिए तो उसकी एडवांटेज हम लोग, लाभ जो है, एडवांटेज हम लंबे समय तक के लिए, लॉन्ग टर्म्स के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो मशीन और लैंड को खरीदने के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा ना। ठीक है, मशीन या लैंड खरीदते हो, बिल्डिंग खरीदते हो, या कोई हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अपने लिए कोई एक मशीनरी खरीदता है, ठीक है, एक्सरे मशीन या एमआरआई मशीन खरीदता है, तो उसके लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो पेमेंट करोगे तो ये चला जाएगा ऑल कैपिटल
पेमेंट। ओके, क्योंकि अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आप ये लैंड बिल्डिंग मशीनरी खरीदने के लिए तो कर रहे हो, ठीक है, आप लैंड बिल्डिंग या मशीनरी फर्नीचर ऑफिस खरीदने के लिए तो कर रहे हो ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेट एसेट कहलाएगा। एंड ऑल द कैपिटल पेमेंट वी विल रिकॉर्ड इन द एसेट साइड। ओके, आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों का कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं, और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए मिटा दें। आइए देखते हैं कुछ और चीजें कि रिवेन्यू नेचर का क्या हो, रिवेन्यू नेचर में हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल नेचर में होगा तो क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, इसमें दो अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के देगा आपको, उसकी टेंशन मत लो। एंड द अदर अकाउंट इज बैलेंस, सॉरी हाँ बैलेंस शीट। First account is income and expense and other is balance sheet. In income and expense, we record the revenue transaction of revenue nature, revenue transactions. ठीक है, and in the balance sheet we record the transaction of capital nature, transaction of capital nature. क्लियर है। अब कुछ पॉइंट्स इसमें होंगे, आपको दिया रहेगा रिवेन्यू नेचर में क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल नेचर में क्या रिकॉर्ड करेंगे। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि रिकरिंग नेचर का है, अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकरिंग नेचर का है तो उसको हम लोग कहां रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में। ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन्स जो है रिकरिंग नेचर का है, आइदर इनकम और एक्सपेंस, एंड इफ इट इज रिकरिंग इन नेचर, then we will record in the income and expense account. Okay, and if the transactions is of non-recurring nature, we will record in the balance sheet. ठीक है, if the transactions is of non-recurring nature, then we will record in the balance sheet. Now second point is, if the amount is small amount is given, if small amount is given, so then it will record in the income and expense, and if big amount is given, big amount is given, then it will record in the balance sheet. ठीक है, अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि स्मॉल अमाउंट है या बिग अमाउंट है। सपोज कि अगर आपको फिगर दिए गए हैं और फिगर में मान लो एक फिगर है 5 लाख रुपीज का, एक है 2 लाख रुपीज का, एक है 10,000 रुपीज का, एक है 20,000 रुपीज का, और तीसरा है 30,000 रुपीज का, और फोर्थ है 5,000 रुपीज का, सॉरी 500 रुपीज का, या फिर नेक्स्ट है 1,500 रुपीज का। तो एज कंपेयर टू 50,000, 5 लाख, 2 लाख, 20,000, 30,000, this 500 and 15,000 is very much small amount as compared to these. So we will record this amount in the income and expense account. Clear? We will record this 500 and 1,500 in the income and expense account. And suppose कि
suppose amount is given 10,000, 20,000, 30,000, and the other amount is 5,50,000. As compared to 10,000, 20,000, 30,000, this amount is very much bigger than this. So we will record this in the balance sheet. Okay. So by this way, we can judge this amount, that either we write this in the income and expense account or in the balance sheet. Clear? The third point is, when we received some amount and that amount is of small purpose, small amount, received something, when we received amount and for the general purpose, अगर हम कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और वो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं और वो एक जनरल पर्पज के लिए अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, देन वी रिकॉर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंस. एंड व्हेन वी रिसीव सम अमाउंट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, when we record the amount for the specific purpose, then we record in the balance sheet. Clear है? अगर हम कोई चीज जनरल पर्पज के लिए रिकॉर्ड करते हैं, रिसीव कर रहे हैं, जनरल पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो इनकम एंड एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे. और अगर रिसिप्ट कर रहे हैं और स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिसिप्ट कर रहे हैं, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. ओके. द फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेंस. ठीक है. एक्सपेंस, अगर हम कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं एंड द बेनिफिट वी ड्रॉ फॉर ओनली 1 ईयर, अगर वो बेनिफिट हम केवल 1 ईयर के लिए ही है, अगर हम कोई चीज एक्सपेंस कर रहे हैं और उससे जो डिराइव बेनिफिट है वो केवल 1 साल के लिए ही है, तो 1 साल के लिए तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंस में पुट करेंगे. और अगर कोई एक्सपेंस है और उसका जो बेनिफिट है वो मोर देन 1 ईयर और फॉर फ्यूचर, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कहां, बैलेंस शीट में. आई बात समझ में? चलिए एक पॉइंट और यहां पे समझ लो कि अगर मान लो कि कोई अमाउंट है और स्मॉल अमाउंट है, उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंस में. वहीं अगर कोई बिग अमाउंट है उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको हम करेंगे लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. कहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाद में देखा जाएगा, बट ये समझ लो कि इसको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे. अगर कुछ रिसिप्ट हो रहा है जनरल पर्पज के लिए, तो वी रिकॉर्ड करेंगे, वी रिकॉर्ड इन द इनकम एंड एक्सपेंस. और अगर कुछ स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिसिप्ट हो रहा है तो वी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट. क्लियर है? क्या होगा कि अगर अमाउंट जो है स्मॉल अमाउंट है, लेकिन स्मॉल अमाउंट कंपनी को दिया गया एनपीओ को, लेकिन स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया हो, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे. और अगर बिग अमाउंट है और जनरल पर्पज के लिए दिया गया है तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. फिर से बात समझिए, छोटा अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट है, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंस में. लेकिन क्या होगा कि अगर स्मॉल अमाउंट है लेकिन स्पेसिफिक पर्पज के लिए दिया गया है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे. और अगर बिग अमाउंट है तो वैसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस शीट में. लेकिन बिग अमाउंट के साथ साथ एक कंडीशन और है इसमें कि जनरल पर्पज के लिए दिया गया है, तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे. पॉइंट है. तो ऐसा अगर हो गया तो क्या होगा, तो सपोज समझ लो इसको कैसे देखना है कि स्मॉल अमाउंट है और स्पेसिफिक पर्पज के लिए है. अब मान लो कि कोई हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में किसी ने स्मॉल अमाउंट यानी कि सपोज कि 5,000 रुपीज दिया डोनेशन. ठीक है.
और उसने डोनेशन के साथ ये कहा कि इंस्टॉल कर दीजिएगा, इंस्टॉल करना है क्या, एक्सरे मशीन, या फिर कोई एक वार्ड बनाना है अदर पेशेंट के लिए, ओपीडी के लिए कोई वार्ड बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनानी है, इसको बिल्डिंग मान लो, चलो इस तरह समझ में आ जाएगा आपको, बिल्डिंग बनानी है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 5000 रुपीज से हम एक्सरे मशीन इंस्टॉल करवा दें या कोई हम बिल्डिंग बना दें? क्या ये पॉसिबल है कि 5000 रुपये में एक नया बिल्डिंग हॉस्पिटल का बन के तैयार हो जाएगा? या कोई मंदिर है और उसमें हम कहें कि सोने का मुकुट चढ़ाना है, भगवान को लगाना है, और 5000 रुपीज हम उसके लिए दे दें, तो क्या 5000 में वो सोने का एक पूरा मुकुट तैयार हो सकता है? नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो सकता है। तो पहला जो ये केस है, स्मॉल अमाउंट विद द स्पेसिफिक पर्पज, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर स्मॉल अमाउंट आएगा और स्पेसिफिक पर्पस, तो पहली बात कि ये आएगा ही नहीं, ठीक है, ये इम्पॉसिबल केस है, क्योंकि हम स्मॉल अमाउंट से कोई स्पेसिफिक पर्पज हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 5000 रुपीज, 10,000 रुपीज में हम कहें कि बिल्डिंग बनवा देना, हम इसलिए डोनेशन दे रहे हैं, तो 10,000 में बिल्डिंग नहीं बन सकती है, ठीक है। तो पहला तो ये इम्पॉसिबल केस है, क्लियर है, पहला ये इम्पॉसिबल केस है। अब मान लो कि बिग अमाउंट लेकिन जनरल पर्पज के लिए आ गया, तो क्या करेंगे? तो हाँ, बिग अमाउंट है तो जनरल पर्पज के लिए यूज होगा, तो उसको हम लोग कैपिटल नेचर का ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। बिग अमाउंट है, मान लो कि 10 लाख रुपीज एक हॉस्पिटल को, 10 नहीं 20 चलो कर लेते हैं, 20 लाख रुपीज एक हॉस्पिटल को डोनेट किया गया, लेकिन पर्पज नहीं बताया गया, पर्पज नहीं बताया गया कि क्या करना है। तो पहली बात कि ये बिग अमाउंट है, तो वैसे ही बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद इससे हम कोई जनरल पर्पज भी पूरा कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं, छोटे छोटे कई सारे काम कर सकते हैं, कोई छोटा सा मशीन खरीदना हो, चेयर खरीदना हो, किसी की सैलरी, रेंट, एडवर्टीजमेंट का कोई आउटस्टैंडिंग हो तो वो हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, या कोई हम नया वार्ड बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं। तो इससे जो है हम कोई जनरल पर्पस भी पूरा कर सकते हैं, और इससे हम कोई अपना एक स्पेसिफिक पर्पस भी पूरा कर सकते हैं, कि सपोज कि मान लो कि मरीजों के लिए एक अलग से हमको वार्ड बनाने की ज़रूरत है, बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उससे हम एक बिल्डिंग भी बना सकते हैं, उससे हम कोई मशीन खरीद सकते हैं, ठीक है, उससे हम फर्नीचर खरीद सकते हैं। तो ये सारे स्पेसिफिक पर्पस भी इससे पूरा हो जाएगा और इससे जनरल पर्पस भी पूरा हो जाएगा। सो अगर बिग अमाउंट है और जनरल पर्पज है, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर का ही बोलेंगे, क्लियर है, तो भी हम इसको कैपिटल नेचर का ही बोलेंगे, बिग अमाउंट और बिग अमाउंट प्लस जनरल पर्पस, जनरल पर्पस, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल नेचर का, ओके। एंड स्मॉल अमाउंट लिख लो इसको, स्मॉल अमाउंट प्लस स्पेसिफिक पर्पज है, स्पेसिफिक पर्पज है, तो इट इज, ये इम्पॉसिबल इवेंट है, ये गलत है, इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटे पैसे से हम स्पेसिफिक पर्पज फुलफिल नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, so see you in the next video, thank you।